जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक्स है, आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। Now discuss about what is angle. What is angle? When two rays starting from the same initial point. When two rays starting from the same initial point, and this is the angle. This is the angle, or we can say that when the figure formed by two rays of the angle. This is the definition of angle. What do you mean by angle? The figure formed by two rays of the angle. Here two rays, see the first rays, and here second rays, and this is vertex. This is vertex. You know what is vertex? What do you mean by vertex? When two rays starting from the same initial point, when two rays starting from the same initial point, this is called vertex. जब दो रेज एक ही पॉइंट से होके जाती हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. तो ये आपका हुआ वर्टेक्स. वन वर्टेक्स एंगल हैविंग वन वर्टेक्स एंड टू रेज. ओके, नाउ डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ एंगल. टाइप ऑफ एंगल्स. First, acute angle. Acute angle. And second, right angle. And third, obtuse angle. And fourth, straight angle. Straight angles. And fifth, reflex angle. And next, complete angle. Here type of angles. Here many types of angle. First, acute angle. Second, right angle. Third, obtuse angle. And fourth, straight angle. And fifth, reflex angles. And last, complete angle. Now, define of acute angle. What do you mean by acute angle? आप किसको एक्यूट एंगल कहते हैं? ठीक है, कैसे हम क्लासीफाई करेंगे कि ये जो एंगल्स दिया हुआ है ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है, किस कैटेगरी में आता है? तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं. व्हाट डू यू मीन एक्यूट एंगल? ओके, एन एंगल हुज मेजर इज more than 0 degree, more than 0 degree, but less than 90 degree. An angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. For example, 23 degree, 65 degree, and 79 degree, etc. This is the acute angle. This is acute angle. ठीक है. Next, right angle. What do you mean by right angle?
an angle whose measure is exact 90 degree, exact 90 degree. This is the right angle. This is right angle. Once again, right angles are having 90 degree angles is called right angle. Next, obtuse angle. What do you mean by obtuse angle? An angle whose measure is more than 90 degree, more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से लेस हो, वो होता है आपका obtuse एंगल. नेक्स्ट आपका है स्ट्रेट एंगल. A triangle having 180 degree, exactly 180 degree. This is straight angle. This is straight angle. Now discuss about reflex angle. An angle whose measure is more than 180 degree, more than 180 degree and less than 360 degree. This is called a reflex angle. This is reflex angle. This is reflex angle. Now discuss about complete angle. An angle whose measure is 360 degree. An angle whose measure is 360 degree is it called complete angle. 360 degree. Now once again discuss about all the parts. What do you mean acute angle? Acute angle means न्यून कोण. acute angle means न्यून कोण. ठीक है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं. acute एंगल क्या है? ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस होता है, वो होता है आपका एक्यूट एंगल. ठीक है. नेक्स्ट राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स समकोण. राइट एंगल मीन्स समकोण. एंगल्स हैविंग एग्जैक्ट 90 डिग्री. जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं समकोण. ओके. नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स अधिक कोण. अधिक कोण. एंगल्स हैविंग मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. जब कोई भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो तो उसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल में. उसको हम क्लासीफाई करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल में, लाइक 95 डिग्री, 120 डिग्री, like figure this type. This is obtuse angle. This is obtuse angle. Next straight angle. Straight means रिजु कोण. रिजु कोण. जब कोई भी एंगल एग्जैक्ट अगर 180 डिग्री का कोई एंगल है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. हिंदी में कहते हैं उसको है रिजु कोण. नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स बृहत कोण. You know what is a बृहत कोण? बृहत मीन्स बड़ा. तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो तो वो आप क्लासीफाई करेंगे उसको रिफ्लेक्स एंगल में. जो भी एंगल 180 से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से क्या हो, लेस हो, वो आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल में. और जो भी एग्जैक्ट 360 मतलब कंप्लीट का मतलब संपूर्ण, इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण. क्या है? संपूर्ण कोण. मतलब ये कोण जो क्या हो गया, कंप्लीट है, पूरा. तो ये क्या होता है? कंप्लीट मीन्स 360 डिग्री जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट एंगल्स होते हैं. ठीक है. तो आई थिंक जो भी टॉपिक्स है मैंने डिस्कस किया है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. तो now discuss about complementary angle. Complementary angle. What do you know?
complementary angle, and second supplementary angle. Next, supplementary angles. Now discuss about complementary angles and supplementary angles. The sum of two angles, let the angle first and angle second is 90 degree. 90 degree. When the sum of two angles is 90 degree, is called complementary angles. Like examples, this is 60 degree angle. This is 60 degree angle, and second angle is 30 degree. Now the sum of angle first and angle second both is 90 degree. This is the complementary angle. ठीक है, तो complementary मतलब होता है पूरक कोण. इसको हम कहते हैं पूरक. क्या कहते हैं इसको? हम पूरक कोण कहते हैं. तो जब किसी भी दो एंगल्स को आप ऐड करते हैं, अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो वो होता है आपका पूरक कोण. ठीक है, तो अगर हमको हाउ टू फाइंड कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई एक एंगल दिया हुआ है, अगर 60 का आपको कंप्लीमेंट्री फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30. तो क्या होगा, 60 का जो कंप्लीमेंट्री हो गया वो क्या हो जाएगा आपका 30. तो कभी भी आपको कंप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है तो आप 90 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आपको एंगल मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री मींस सम पूरक कोण. ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल, लेट द एंगल फर्स्ट एंड द टू इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अगर कोई दो एंगल्स है उसको हम ऐड कर रहे हैं और ऐड करने पे दोनों 180 डिग्री हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. हियर गिवन एग्जांपल्स 120 डिग्री एंड 60 डिग्री. सम ऑफ बोथ एंगल is 180 degree. 180 डिग्री. तो these are supplementary angles. तो कैसे हम फाइंड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स को, तो अगर कभी भी एंगल फाइंड, तो एक एंगल उसमें आपको दिया रहेगा और दूसरा जो एंगल है आपको सप्लीमेंट्री फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, 180 माइनस जो भी आपको एंगल्स है से 120 डिग्री. तो जो ये आपका आंसर आएगा 60 डिग्री, तो क्या हो गया, 120 का सप्लीमेंट्री क्या हो गया 60 डिग्री. तो ऐसे हम फाइंड करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, कैसे दिया कि आपको 110 का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है. क्या करेंगे आप, 180 माइनस 110 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 70 डिग्री वो क्या हो जाएगी आपकी सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, उसको हम कहते हैं समपूरक कोण. ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं. सप्लीमेंट्री का जो मीन्स होता है पूरक कोण, जब दो एंगल्स को आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपका 90 डिग्री अगर आता है तो आपका हो जाएगा आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे, और 90 में से आप वो एंगल आपको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी एंगल रहेगा जो मिलेगा उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. सप्लीमेंट्री कैसे करेंगे, 180 माइनस करेंगे एंगल, जो एंगल मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा. ठीक है, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे आप बाद में याद रखते हैं, कभी आपको मिस आउट हो जाता है, भूल जाते हैं कि किसका 180 ऐड करने को होगा, किसका 90 होगा. आप सिंपल हम याद रखेंगे उसके लेटर से. कैसे याद रखेंगे, उसके लेटर से. तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री मतलब ये सी से स्टार्ट होता है और ये सप्लीमेंट्री यस से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट जब हम पढ़ते हैं, ए बी सी डी पढ़ते हैं, उसमें सी पहले आता है और एस जो होता है लेटर वो बाद में आता है. और दो चीज़ें हैं, 90 है आपका और एक 180 है. तो 90 180 में पहले क्या आता है आपका 90, तो पहले के लिए पहला मीन्स 90 डिग्री और बाद के लिए बाद वाला 180 डिग्री. तो इससे आप अगर कभी भी मिस कर जाते हैं
तो इस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं कि सी मीन्स 90 डिग्री और एस मीन्स 180 डिग्री। सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एस मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक जो ये टॉपिक्स है आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जो भी इसमें चीज़ें थी मैंने बता दी हैं आपको अच्छे से, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा, आप इंजॉय भी किए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल्स जो टॉपिक्स था हमारा आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और जो हमारा चैनल है रियल गुरु विद कुमार भी, उसको सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।